Hello and welcome to Dr. Sudhir's classes. So today we'll start about the geomorphology, and first topic that we will take today is about the shape of Earth. What kind of shape planet Earth has. So what is the shape of Earth? Yes? Geoid shape. So what is geoid? Can you tell me what is geoid? You can say Earth is oblate spheroid. It is not sphere, it is oblate spheroid. That means it is flattened on the poles. Okay, Earth is flattened on the poles. Suppose if you want to draw the diagram of Earth, then ये यहाँ से ये जो चीज़ है यहाँ से फैली हुई है इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल डायमेंशंस पे ये ज़्यादा है, और पोलर डायमेंशंस टू नापोगे तो ये कम है. ओके, अब कितना कम है? इक्वेटोरियल जो डायमीटर है, दिस वन डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,756 किलोमीटर. 12,756 kilometer. This diameter is 12,712 kilometer. ओके, सो ऑलमोस्ट कितने का डिफरेंस है? 44 का डिफरेंस है. 44 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. नॉर्थ टू साउथ means earth is flattened on the poles. अब ये चीज आपको समझ में आ गई. इसका रेलेवेंस क्या है? आपसे सीधा सीधा either the examiner can ask you a direct question in the form of a statement that equatorial diameter of earth is more than that of polar diameter. So this statement is correct. Okay? Does this thing have any impact on earth, on any of the property that we study that is important for us? That is important for us? Okay, so what is the importance of this? So have you heard of the word gravity? Gravity is the force with which earth attracts or pulls towards itself, right? Okay, so gravity is determined by the mass of any object and the radius from the center, right? So suppose this is earth. I have drawn a little circular spheroid, but it is not sphere. Okay, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना. And if it is the center, so it is the radius r. And this is the mass. Mass is the total weight, you can say in another sense, but it is not weight. Mass is different. When we study science, then we will discuss what is the difference between mass and weight. Okay, so this gravity is the factor of mass and radius ka inverse proportional, right? So force of gravity is equal to G m1 m2 by r square. Okay, so यहाँ पे आपको दिख रहा होगा that it is inversely proportional to the radius. So अगर कहीं पे radius ज़्यादा है तो वहाँ पे gravity, force of gravity कम होगा. So this relationship, this mathematical or physical relationship shows that इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी
कम होगा पोल्स की तुलना में। यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इट इज लेस? बिकॉज द रेडियस इज मोर, राइट? सो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पे ग्रेविटी कम होगी बजाय कि यहां के। अगर आप यहां आगे बैठोगे तो यहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ गए? तो दैट मीन्स कि अगर आप एवरेस्ट पे जाके बैठोगे तो वहां पे ग्रेविटी कम हो जाएगी। वेरी गुड। आप मारियाना ट्रेंच में जाएंगे तो क्या होगा? फाइंड आउट वेयर इज मारियाना ट्रेंच। Okay, this is your work for today. Where is Mariana Trench? This is the deepest point on earth, approximately 11,000 kilometers deep. Even if you compare the height of Everest is 8,848 kilometers. Kilometers or meters? Meters, not kilometers. तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। Meters. Meters, okay, and that of Mariana Trench, the depth is 11,000 approximately, not kilometers। यहाँ पे भी इतना तो रेडियस ही नहीं है अर्थ का। डायमीटर वाज 12,700 something, right? So you understand this about the shape of earth, gravity. You can be asked direct questions, okay? Next, you know about the shape of earth, then you must know some more things about the earth and its surface. So what are those things? The first thing is latitude. What is latitude? हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो अर्थ के ऊपर बाहर से दिखने वाली चीजें पहले, देन विल गो इनसाइड इट, राइट? सो आउटसाइड चीजें हम देख लेते हैं। चीज हम समझ लेते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन विल कम टू इट्स मोशंस, राइट? व्हाट इज लैटिट्यूड? सुना होगा आपने, आपने ये तो देखा होगा कि इक्वेटर नाम की कोई चीज होती है। इज इट ए इमेजिनरी लाइन? यस। कोई कहीं पे दिख तो नहीं रही है ये? हाँ। कहां से नापते हो, कैसे नापते हो, कहां से मेजर होती है? दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। सो लैटिट्यूड्स आर, और लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस from the center of earth. Angle is 0, equator. Angle is 23 degree, that is Tropic of Cancer. Angle is 23 degree, Tropic of Capricorn. Angle is 66 degree, which circle? Antarctic Circle. The angle is 60 degree in the north, Arctic Circle, and the angle is 90 degree, North Pole. The angle is South Pole. This is 90 degree and this is South Pole. Okay, अब आपको ये दिखता है ऐसा है, आपने नापा, मैंने जो आपको बताया कि how we measure it. So it is measured in degrees. This is 90 degree, right? This was 23 degree. This was 66 degree, right? This angle is 23 degree and half. This is 66 degree and this complete was 90 degree, right? And you see it like this: 0 degree, 23 degree, 66 degree, and this is 90 degree. So all of these are circles. These are circles, and equator is the great circle because
the diameter of this circle is maximum. Okay, so these are circles basically. Okay, ये बात आपको समझ में आ गई, latitudes. Okay, so now let us come to longitudes. Okay, longitude, it is also known as meridian. Longitude or meridian. This is also the angular distance measured from the center of the earth. ठीक है, अब वो हम नाप रहे थे ऐसे, we were measuring like this, ये हम नापेंगे ऐसे, right, in this manner. So suppose this we have imagined first 0 degree, we have imagined the 0 degree meridian or longitude, not we have imagined but we have agreed upon it. This is passing through Royal Observatory in London. Royal Observatory of London, वहाँ पे एक agreement sign हुआ था. That is why we consider this point from where it is passing through the courtyard of that Royal Observatory in London. So ये हमने 0 degree मान लिया agreement के through. Okay, so you just calculate like this. You just understand it is like this. You are calculating like this. Okay, so like this you are going. So इतना आपने लिया, ये एंगल जो हो गया उसके हिसाब से आपने, just wait, it is difficult to show in 2D because it should be shown in 3 dimension, then you can understand better. I will make sure that next time I will show you in the 3 dimension. So suppose this is 0 degree, this is say 5 degree east, this one east, this one west. So in that manner these are various longitudes. तरबूज नहीं है ये. Okay, this is earth. So ये अगर 0 degree meridian है, longitude है, so accordingly ये other different meridians और longitudes हैं. अब इसके जो opposite में एक meridian आएगा, यहाँ से total अर्थ का जो सर्कल है कितना है? कोई भी जो सर्कल है, स्फीयर है, उसका 360 डिग्रीज होती है. ओके, सो सपोज आप 0 डिग्री मेरिडियन से चलते हैं ईस्ट की तरफ, दिस इज ईस्ट. सो आप 360 डिग्री कंप्लीट करके आओगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे. ओके, पर आप जाके 180 डिग्री पे रुक जाओ तो आप कहां आ जाओगे? इस पॉइंट के अपोजिट जाके खड़े हो जाओगे. इजंट इट? सो अपोजिट जाके पहुंच जाओगे, उस जगह को, जो अपोजिट वाली जगह है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन. क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल डेट लाइन. तो इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी जगह हुई? इसके पीछे वाली जगह, 180 डिग्री, almost 180 degree. It is not a fixed line. I am telling you first, not this point. International date line is not a fixed line.
इट इज ए आर्बिट्रेरी लाइन, ऐसा ऐसी है ये। अगर आप अपनी एटलस उठा के देखेंगे उसमें आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। कंट्रीज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको माना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस दे अडॉप्टेड द इंटरनेशनल डेट लाइन। कुछ साल पहले एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसने चेंज भी किया था अपना। दे केम इनटू ऑस्ट्रेलियन टाइमलाइन। पहले वो ऑस्ट्रेलिया वाले में नहीं थे, बट देयर बिजनेस वाज मोर विद ऑस्ट्रेलिया, सो दे हैव शिफ्टेड देयर टाइमलाइन। अगर आप ईस्ट से जा रहे हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंच जाते हैं और यू जंप ऑन द वेस्ट साइड, सो देयर विल बी अ चेंज इन द डेट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। पहले आप सिर्फ ये समझिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स जो है ये इमेजिनरी लाइन्स ही हैं। और सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था ये? 0 डिग्री पे, क्योंकि वहीं पे एग्रीमेंट हुआ था। 0 डिग्री इज वेयर ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं हम इसको। सो लॉन्गिट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? टाइम को कैलकुलेट करना। किस जगह पे कितना बजा है ये हमें कौन बता रहा है? लॉन्गिट्यूड्स बता रहे हैं, आपके मेरिडियंस बता रहे हैं। ओके, अब टाइम को कैसे पता लगता है ये समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ का पूरा अगर एक चक्कर लें तो दैट इज 360 डिग्री। और अर्थ कितनी देर में चक्कर लगाती है? 24 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। अगर आप एग्जैक्ट लेना चाहते हैं, सो रोटेशन टाइम कितना है? 3 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ओके, एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं है, ठीक है। सो आपने किसकी बात की? रोटेशन की बात की। रोटेशन कितनी देर में होता है? 24 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली लेंगे हम। दैट आई सपोज इन केस इन योर स्टेट एग्जाम और कहीं पे भी जब आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको ये डायरेक्ट फैक्ट दे दिया जाता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 360 डिग्री अगर 24 आवर्स में अर्थ चक्कर लगाती है तो 1 घंटे में कितना लगाएगी? 15 डिग्री। 1 आवर में 15 डिग्री का मूवमेंट होता है, राइट। अब आपको ये समझना होगा अर्थ का मोशन कैसा है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट। आपको ये पता है अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है और 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री 15 डिग्री मूव कर रही है। सो आप जब ईस्ट की तरफ जाओगे, 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो 15 डिग्री चलने पे आपको 1 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सन सबसे पहले कहां उगता है? ईस्ट में। तो दैट इज वाई जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। आपको इधर की तरफ जब भी आप 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री पे आपका टाइम कितना बढ़ जाएगा? 1 घंटा। अब इंडिया का जो इंडियन मीन टाइम लाइन, इंडियन मीन टाइम है वो 82। तो इंडिया लंदन से कितना आगे हुआ बताओ? इंडिया में कितने, हम उनसे कितना घंटे आगे होते हैं? करिए। साढ़े 5 घंटा, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, सो एक और एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ये तय हुआ कि जो भी कंट्रीज हैं
they will declare their timeline, their mean time in ratio of 7.5 degrees. आधे घंटे के अंतराल पे they will declare their timeline. ठीक है, सो इसीलिए इंडिया ने 82.5 डिग्री लिया हुआ है. इंडिया ने 82.5 डिग्री लिया हुआ है, दैट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ लंदन. इसी तरह अगर आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटेगा. ठीक है, एक एक घंटा घटता हुआ जाएगा. ठीक है, अगर मान लिया आपको मानता है कि यहां पे 12 बजे लंदन में, तो इंडिया में कितना बजेगा उसी टाइम पे. अगर मैं बोलता हूं कि इस टाइम पे लंदन में 12 बजे दोपहर हुआ है, 12 PM हुआ है, सो इंडिया में कितना होगा उस टाइम पे 5:30 हो रहा होगा. आप पीछे जाओगे वेस्ट की तरफ तो आप 5 घंटा पीछे आ जाओगे, अगर इतना ही जगह आप पीछे आओगे तो. ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, ईस्ट में जाए जा रहे हो और आप 180 डिग्री तक चले जाते हो, आप जंप कर जाते हो वेस्ट की तरफ, तो आप कौन से दिन में पहुंच जाओगे? कैलकुलेट करके देखिए. अगर आप 180 डिग्री चले जाते, सपोज यहां पे 12 बजे हैं ग्रीनविच में लंदन में, सो आप पीछे जाओगे तो कितना बच जाएगा? और अगर आप लाइन क्रॉस कर जाते हो, इंटरनेशनल टाइम लाइन, डेट लाइन, तो क्या होगा? आपकी डेट बदल जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी. मतलब आप पहले दिन पहुंच जाएंगे. अगर कोई बंदा बाय एयर जा रहा है एंड दैट पर्सन इज क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ही हैव टू लिव दैट सेम डे ट्वाइस, है ना? ओके, सो ये चीज आपने समझ ली. अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा, यू कैन आंसर दैट. टाइम हमेशा अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो घटेगा. ठीक है, सन सबसे पहले ईस्ट में उगता है और आपको समझना होगा अर्थ रोटेट्स लाइक दिस. ठीक है, ऐसे घूम रहा है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट. तो यहां पे सन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, राइट? टाइम उधर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, दैट इज द रिलेशन. ओके, ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा इस पे आ जाता है कि लंदन कितना पीछे है हमसे, कितना आगे है, या वो इलाका कितना आगे है, कितना पीछे है. अब आपको मैंने सिर्फ इतना बताया है, अभी मैं आपसे मैथ वर्क नहीं करवा रहा हूं. ओके, बट इट इज योर ड्यूटी टू पिक अप योर एटलस. You can take any atlas, you can take Orient Black Swan or you can take Oxford Atlas. Okay, and from that atlas you try to look into this maze, जिसमें कि आपको ये दिया गया होगा longitudes as well as latitudes. longitude और latitude दोनों का एक्चुअल में अगर दोनों को मिला के भी हम देखेंगे क्या यूज होता है, किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना. एटलस के सबसे पीछे के पेजेस को उठा के देखिए, आपको उसके अंदर मिलेगा जगह के साथ में लिखा होगा कि इतना डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड दिस एंड दैट. सो बेसिकली व्हाट आर दोज दैट इंडिकेट द लोकेशन इन दिस एटलस. मैप के ऊपर आपका लोकेशन बता रहा है उस प्लेस का. ठीक है, सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के हम क्या करते हैं, किसी भी जगह को मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, लॉन्गिट्यूड का अकेले का क्या काम है, टाइम को बताना, हमें कितना बजा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, डेट क्या है, वो हम मेरिडियन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. ओके, इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आते हैं मोशंस ऑफ अर्थ. आपको ये तो पता है कि अर्थ एक स्फीयर है और ये सीधा ऐसे नहीं खड़ा हुआ है. अर्थ इज टिल्टेड
ये टिल्टेड है, कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री पे, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट है, सीधा नहीं है। तो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। अच्छा, ये तो चीज जब आपने समझ ली, तो अब अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, एक जो दिन और रात बनाते हैं, रोटेशन, और एक जिसके कारण आपके सीजन्स आते हैं, दैट इज अर्थ का रोटेशन इसके अपने एक्सिस के ऊपर होता है, जो इसका खुद का एक्सिस है इसी के ऊपर ये रोटेट करती है, और जिसके कारण नॉर्थ और साउथ बनते हैं। और ये रोटेशन जो होता है ये वेस्ट से ईस्ट होता है, और यू कैन से दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। आप देख लीजिए क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरह से, लेकिन ये मोशन कैसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। दूसरा आपका जो मोशन है वो रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन अर्थ करती है किस अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड सन। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन्स बनते हैं। अब सीजन्स के बनने के पीछे सिर्फ रिवॉल्यूशन ही कारण नहीं है, वो एक टिल्ट का भी कारण है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि टिल्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीजन के बनाने में, रिवॉल्यूशन के साथ साथ। अब ये रिवॉल्व कैसे पाथ में करती है? क्या एक सर्कल में रिवॉल्व करती है, जैसे कि ये सन है तो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है सीधा सीधा सर्कल में, या फिर इसका पाथ थोड़ा सा ऐसा है कि अगर ये सन है तो अर्थ ऐसे से पाथ में रिवॉल्व करती है। तो दिस इज द पाथ, इट इज एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है ये सन के चारों तरफ। ओके, सर्कुलर पाथ नहीं होता है। तो इलिप्टिकल पाथ में ये कभी पास होती है सन के और कभी दूर होती है। इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं रिवॉल्यूशन को। सो अगर ये सन है तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है चक्कर लगाती है एक अंडे के जैसा ऑर्बिट में। एक डिफाइंड ऑर्बिट है जिसमें वो चक्कर लगाती है, एंड दैट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी प्लैनेट। प्लैनेट वो सेलेस्टियल की एक वेल डिफाइंड, वेल क्लियर्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड चक्कर लगाती है। और प्लैनेट वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास सफिशिएंट है उसको एक राउंड शेप देने के लिए, ठीक है। अगर उसका मास सफिशिएंट नहीं है तो उसकी ग्रेविटी सफिशिएंट नहीं होगी, उसका ग्रेविटेशनल पुल सफिशिएंट नहीं होगा, एंड देन इट विल नॉट अटेन अ राउंड शेप, एंड इफ इट इज नॉट अटेनिंग अ राउंड शेप देन इट इज नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट क्या है? प्लैनेट वो एक सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिसका एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है, उसने अपना ऑर्बिट पार किया हुआ है, क्लियर किया। और दूसरी बात है, इस बॉडी का मास सफिशिएंट है टू अटेन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, टू अटेन ए ऑलमोस्ट राउंड शेप। तीन क्राइटेरिया मैंने आपको एक प्लेनेट के बताए हैं। तो अर्थ एक प्लेनेट है, वापस आ जाते हैं, जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो चक्कर लगाता है। अगर अर्थ यहां पे है, सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज सन, सो दूर है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं हम एपेहीलियन। अगर ये सबसे पास है, सपोज यहां पे है चक्कर लगाते हुए, इसको पास पेरीहीलियन। सो पी से पास और पी से पेरीहीलियन याद करने के लिए आपको आसान हो जाएगा।
हीलियोस मीन सन, पेरीहीलियन, ठीक है, एपेहीलियन, ओके। सो पेरीहीलियन 3 जनवरी को होता है, अभी रिसेंटली 3-4 जनवरी के आसपास होता है। आपको लग रहा होगा हम इतने पास थे और फिर भी हम इतने ठंड में मर रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है। हाँ, सो ठंड का रोल बहुत सारी चीजों का है, वो अर्थ का स्लांट कैसा है, किस तरह से सन की रेज पड़ रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। आई विल टेल यू व्हेन वी विल स्टडी क्लाइमेट एटसेट्रा, देन वी विल नो कि अगर सन की रेज, अगर ये सन है और ये अर्थ है, अगर सन की रेज किसी जगह पे सीधी पड़ रही है तो एक जगह पे सोच के देखो, सन रेज पड़ रही है, हीटिंग होगी। अगर सन की रेज डिफ्यूज हो जाती है इतने बड़े एरिया पे, ज्यादा हीटिंग नहीं होगी। तो अर्थ का और सन का इस जगह के लिए ऐसा है कि सन की रेज वर्टिकल नहीं होती हैं, दे आर ऐसे टेढ़ी होती हैं। अब टेढ़ी होने की वजह से क्या होता है, वो फैल जाती हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग नहीं कर पाती है। वी विल नो अबाउट दिस लेटर ऑन। क्या होता है, ये अगर अर्थ है, एक तो सीधी पड़े, मान लिया ये सन की रे आ रही है, इस एरिया में गर्मी करेंगी। एक अगर टेढ़ी हुई, सपोज टेढ़ी हुई तो फैल जाएंगी, इतने एरिया पे चली जाएंगी, तो इतने एरिया को ढंग से सफिशिएंटली गर्म नहीं कर पाएगी वो, इस एरिया को, ठीक है। आई विल टेल यू लेटर ऑन, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा अपने पास, यू विल रिवाइज इट। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। अब पेरीहीलियन सबसे पास कब होता है, जब आपको सबसे ज्यादा गर्मी लग रही होती है, जुलाई के अंदर, ठीक है, जुलाई 4 जुलाई के अप्रोक्सीमेट ये ऐसा होता है। Okay, after that let us come to some more important details about earth and sun. What are they? Have you heard of summer solstice? Winter solstice? Equinox? Have you heard of these terms? Okay, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लेते हैं, वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ जो है चक्कर लगाती है। अब अर्थ जो है क्या है, एक प्लेट स्फीरॉइड है, टेढ़ा है ना। ओके, अब क्या होता है, अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व भी कर रही है। ओके, जब ये रिवॉल्व कर रही है अर्थ अपने सन के अराउंड में, तो कभी जो सनरेज किसी हेमिस्फीयर को लाइटन करती हैं, नॉर्दर्न को, कभी वो सदर्न को। जब नॉर्दर्न में गर्मी होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलाइटिस, ठीक है। और जब सदर्न में गर्मी होती है तब हम उसको बोलते हैं
विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, विंटर सोलिस्टिस। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट, कैसे होता है ये, ठीक है, कैसे होता है ये। तो 21 मार्च को यहां पे देखो, अगर सनरेज यहां पे सीधा कहां गिर रही है, इक्वेटर पे, इक्विनॉक्स, द वर्ड इंडिकेट्स इक्वल नाइट्स, इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स, मतलब डे भी बराबर और रात भी बराबर। सो 21 मार्च को, 21 मार्च को दिन और रात बराबर लेंथ के होते हैं। क्यों? क्योंकि सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पर गिर रही होती हैं। अब 3 महीने के बाद जो है अर्थ घूम के इधर आ जाता है। अब आप इस पर समझने की कोशिश कीजिए। इस पे अगर आप तीनों वो बना देंगे, आपके सर्कल बना देंगे, तो ये सपोज ये आपका इक्वेटर और ये आपका क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉन, और ये आपका नॉट कैप्रिकॉन, कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो यहां पे जो सनराइज आएंगी दे विल बी डायरेक्टली ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के किस पे, तो ये नॉर्थ पोल पे हमेशा ही लाइट रहेगी, रोशनी पूरे टाइम नॉर्थ पोल पे रोशनी रहेगी। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर का जो एरिया है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि वहां सन सेट ही नहीं होता है 6 महीने तक। नॉर्थ पोल को गर्मी में 3 महीने बाद हम कहां पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट 21 जून को, 21 जून को हम यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां पे नॉर्थ पोल पे तो सनसेट होता ही नहीं है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, अर्थ का आधा हिस्सा ऊपर का, अर्थ को हम 2 हेमिस्फीयर में बांट लेते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। नॉर्थ में गर्मी होगी और सदर्न में ठंडी होगी, तो इसको बोलेंगे हम समर सोलिस्टिस, ठीक है। हम जो भी ले रहे हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो अर्थ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लार्जली वो नॉर्थ में ही है। साउथ में तो कुछ कंट्रीज ही हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली 10% पॉपुलेशन लिव्स इन सदर्न हेमिस्फीयर, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नेचुरली जो ये नोमेनक्लेचर है समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस का, क्योंकि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, आज की डेट में अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, यहां पे सर्दी है, सदर्न हेमिस्फीयर में अभी गर्मी है। तो क्यों है यहां पे? क्योंकि सनरेज सीधी कहां गिर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अप्रोक्सीमेटली ये गिर रही है इस एरिया में, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वापस अर्थ जो है घूम के यहां आ जाएगी, तो सीधा सनरेज कहां गिरेंगी, वापस से फिर से इक्वेटर पे। सो दैट इज अनदर इक्विनॉक्स, और ये कब आएगा, अप्रोक्सीमेटली 23 सितंबर के पास, 22 से 23 सितंबर के आसपास ये होगा। हर 3 महीने के बाद ये चीजें हो रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, अर्थ घूम के इधर आ जाएगा। अब आप वापस से देखिए, ये अगर आप इक्वेटर ले लेते हैं, कैप्रिकॉन, जो है सन की रेज कहां गिरेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो इस वाले जो पीरियड में जबकि सदर्न पोल पूरा लाइटन अप होगा, वहां पे सनसेट नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, यू अंडरस्टूड, एंड यू नो इट लेड टू formation of different seasons and the different parts of the world, अलग अलग parts पे अलग अलग seasons हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। अब समझने की कोशिश करो इसी चीज को, कि अगर यहां पे सीधा वर्टिकली
गिर रही हैं सनरेज, तो हीटिंग एक ही जगह पे करवाएंगी। मान लिया इतना एरिया है और सनरेज सीधी गिर रही है, और अगर ऐसा एरिया हो जाए, कौन से में सनरेज ज्यादा हिट कर पाएंगी? फर्स्ट वाले केस में, इसीलिए अभी हीटिंग कम हो रही है। ठीक है, सनरेज जो है ऐसी होती हैं यहां पे, ठीक है, वर्टिकल नहीं होती हैं, टेढ़ी होती हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा रेस्पाइट मिल जाता है। यही कारण है, अगर आप देखोगे, ये तो खैर अपने यहाँ तो हम काफी दूसरी साइड में आ जाते हैं, यही कारण है कि जो अगर ये देखोगे अर्थ को ऐसे बना के देखो अगर, तो यहाँ पे हीटिंग इक्वेटर पे तो उतनी ही हो रही होती है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ते हैं 0 डिग्री से ऊपर ये अगर 0 डिग्री लेते हो तो यहाँ ठंडा क्यों है हायर लैटिट्यूड्स में? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सनरेज ज्यादा सरफेस पे, बड़े एरिया में, तो कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग नहीं हो पाती, और वो कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग ना होने के कारण गर्मी नहीं होगी, ठंड होती है। इसीलिए हायर लैटिट्यूड्स में गर्मी नहीं होती है। ठीक है, आज की डेट में यूरोप में गर्मी कम है, इंडिया अगर उससे, यूरोप में आज भी ठंडी ज्यादा है हमसे, क्यों ज्यादा क्यों है वहां पे? इंडिया से ज्यादा क्यों है वहां पे? उनका लैटिट्यूड ज्यादा है, वहां पे ऐसे सनरेज ऐसे सलैंट गिरती हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये कारण है आपका इन सब का। समझ गए ये चीज? एम आई क्लियर अंटिल नाउ? इसमें कोई भी सवाल आएगा, क्या समर सोलेस्टिस होता है, कब होता है, कैसे होता है, अर्थ के मोशंस क्लॉकवाइज है ना, वेस्ट टू ईस्ट है, इसके बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, अर्थ के बारे में है, सन के बारे में है, तो हम बात करते हैं अभी एक्लिप्स की। एक्लिप्सिस आपने सुना होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स। सो मेनली हम दोनों एक्लिप्स की बात करेंगे। सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स। नाम इंडिकेटिव है, नेम इज इंडिकेटिव इन इटसेल्फ। मतलब सोलर एक्लिप्स मींस सन को किसी ने ढक लिया, सन को किसी चीज ने ढक लिया। अब वो ढकने वाली चीज क्या है? अगर हम बात करें, ये देखिए, दिस इज सन एंड सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, दिस इज अर्थ। अब अर्थ के चारों तरफ एक बॉडी चक्कर लगा रही है, इतना सर्कुलर नहीं है, वो भी इलिप्टिकली है, दैट इज मून। सो अगर मून बीच में आ जाता है तो क्या होगा? ढक लेगा सन को, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज सोलर एक्लिप्स। ठीक है, होता क्या है, इसी का रिवर्स करके देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? मून को ढक लिया, राइट, अर्थ ने। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लूनार एक्लिप्स। ठीक है, लूनार एक्लिप्स में क्या हुआ? अर्थ ने मून को ढक लिया। ठीक है, चंद्र ग्रहण इसको हम बोल देते हैं, और लूनार एक्लिप्स, मून एक्लिप्स हो गया। ठीक है, अब दो चार टर्म्स इसके साथ कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं एक्लिप्स के साथ साथ। एक डायमंड रिंग फिनोमिना होता है कुछ। डायमंड रिंग फिनोमिना क्या होता है? ऐसा सा दिखता है,
सपोज दिस इज सन, और सन को ढकने वाली बॉडी, ओके, सो मून ऑलमोस्ट पूरा इसको कवर कर लेता है, ऑलमोस्ट पूरा। लेकिन क्या मून का फेस पूरा इवन है? जो आप मैं बना रहा हूं बिल्कुल इतना इवन है? उसके ऊपर भी पहाड़ वगैरह, कुछ वैलीज वगैरह भी हैं, है ना? पूरा तो मान लिया कवर कर लिया, लेकिन कुछ अगर पहाड़ वगैरह बच जाते हैं, वहां से अगर लाइट निकल के आएगी, एक पहाड़ से लाइट निकल के आएगी, तो वो क्या एक ऐसा फील देगा कि डायमंड रिंग की रिंग है, रिंग के ऊपर डायमंड लगा हुआ है। दिस इज नोन एज डायमंड रिंग फिनोमिना विच इज एसोसिएटेड विद सोलर एक्लिप्स। थोड़े दिन पहले हुआ था ये, ठीक है? सो ये क्या है? सोलर फिनोमिना है, डायमंड रिंग फिनोमिना। होती क्यों है? क्योंकि द मून सरफेस, लूनार सरफेस इज नॉट इवन, इट इज रफ, इट हैज माउंटेन्स, वैलीज। तो वहां से अगर थोड़ी सी लाइट एस्केप करेगी एक ही जगह से, बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा सा ये दिखता रहेगा, बिकॉज इट कैन नॉट कवर कंप्लीटली, मून साइज इज नॉट दैट बिग। तो ऐसा सा फील देगा कि आपको एक डायमंड रिंग जैसा लगेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट डायमंड रिंग फिनोमिना। अगर मान लिया ये जो डायमंड रिंग, क्योंकि मून का सरफेस काफी अनइवन है, तो अनइवन है, तो अगर जगह जगह से ऐसी ऐसी लाइट्स निकल रही हैं, यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बेलीज बीड्स। उसको हम बोलेंगे बेलीज बीड्स। बीड्स लाइक अपीयरेंस देगा आपको, ठीक है? एक टर्म लूनार एक्लिप्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज ब्लड मून। तो ब्लड मून क्या होता है? ब्लड मून क्या होता है? एक ऑरेंज टिंज आ जाती है मून में, ठीक है, लूनार एक्लिप्स के दौरान, ठीक है? लूनार एक्लिप्स के दौरान एक टिंज आ जाती है, ओके? वो क्यों आती है? हाँ, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है? द वेवलेंथ ऑफ सन रेज इज हाई, लाल दिखता है आपको सन, तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो वेवलेंथ होती है सन रेज की, वो ज्यादा होती है। जब वो मून तक पहुंचती है, जब वो मून तक पहुंचती है तो और ज्यादा हो जाती है। दैट रेडिएशंस, दैट सन रेज, that light rays gives a appearance of reddish color. That is why we call it as blood moon. लाल रंग आपको तब दिखता है वहां पे, ठीक है? सो ये मैंने आपको कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी करवाई है। कल हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अर्थ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और धीरे धीरे चलेंगे, ओके? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।